climbing mountains, it is a very expensive sport. How did you manage? This idea was my friend's idea, and when I told him that we are going to shortfall of funds, and he said that whatever you have, you fund and rest. What makes you excited about sports? खुद नहीं कर पाए इसलिए रहता है कि सपोर्ट करना चाहिए. हर किसी का एक ड्रीम होता है कि चलो मेरा ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ, बट अगर मेरी कुछ छोटी मोटी सपोर्ट से या समवन इज लाइक अचीविंग हिज ड्रीम, सो वी आर मोर देन हैप्पी. Physical fitness, mental fitness is very neglected in Correct. India. 30 to 40 मिनट्स अगर आप दिन के डेली दे सकते हैं अपनी शरीर के लिए, सो दैट विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्या आप अपनी लाइफ में यू हैव इनकॉर्पोरेटेड सम फिजिकल रूटीन रेजिम कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप की 14 साल 15 साल की जर्नी में वो पीछे रह गया? व्हेन यू आर 30, 35 और 25 तो आपको उतना फील नहीं होता, बट वंस यू क्रॉस 40 इयर्स तो फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड यू हैव टू बी फोकस्ड. आपको क्या लगता है कि माउंटेनियरिंग टफ क्यों है? इंडियंस का नाम उतना अच्छा नहीं है. वी आर नॉट वेरी नोन फॉर बीइंग गुड माउंटेनियर्स. माउंटेनियरिंग में सत्यजीत सर सबसे टफ चीज़ आपको क्या लगती है? कई बार होता है कि हम जब ऊपर जा रहे होते हैं तो हम इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं समिट को कि कुछ भी हो जाए हम समिट करना है, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. Welcome to another episode of UN Radio. The theme of this episode is Grit, Glory, and the Soul of Summit. We have with us world record holding mountaineer Satyadeep Gupta with us and founder of Eugene, Sheesh Ram Yadav. Welcome, Sheesh Ram sir. Thank you. Welcome, Thank you. Satyadeep sir. थैंक यू प्रतीक. And for those of you watching Eugene Radio series first time, Satyadeep sir is my college senior. Come from the same alma mater, and we have very similar journey. But he chose to climb mountains. I chose entrepreneurship. She's, I guess, chose the same thing, but something which connects us all. We will discuss that in the podcast. So, as I have already mentioned about your world record, so I would like you to explain to all the non-mountaineers watching this podcast series कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था क्या और why it is so exciting और वो है क्या, क्योंकि अभी भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. आई गेस वो अगले 50-100 साल तक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कोई इतना पागल है नहीं जो ये काम करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रतीक फॉर इनवाइटिंग मी हियर. एंड रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. मैंने एक नया बनाया, कोई और इसको ब्रेक करेगा. दैट इज द वे इट इज. एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर न्यू टू this record, I basically climbed Everest and Mount Lhotse twice in a span of 6 days and 8 hours. So Everest, I think everybody knows, sabko pata hai, it's the highest mountain in the world, and Lhotse is the 4th highest mountain in the world, and it's pretty close to Everest, so it can be climbed together. And what makes this very special is that I have climbed 8,000 meter mountains before Everest. I have climbed Kanchenjunga, which is one of the toughest mountain in the world, and Makalu before. But Everest, I wanted to do something a bit more special than just climbing it. Honestly speaking, that wouldn't have been a bit more challenging for me, only Everest. So my friend came up with this idea of climbing both Everest and Lhotse twice in one season. Nobody has ever attempted that before, and we did it last year, 2024, and the record still stays. So touch wood, let's see how long it stays. एक बार एवरेस्ट चढ़ना ही इतना मुश्किल है, और एवरेस्ट लोड से एक हफ्ते में 4 बार टोटल. सो एंड दैट इज समथिंग आई गेस हमारी इमेजिनेशन से परे है. एंड आई वुड also like to ask Sheesh, Eugene, the current site is, I guess we already discussed that it has 2-3 mountains. So क्या कभी आप भी वो माउंटेन चढ़े हो? मुझे लगता है एवरेस्ट तो नहीं, बट कह सकते हो कि वो भी एक लाइक एडवेंचर है, काइंड ऑफ एवरेस्ट. मेरे हमारे लिए तो मतलब आप, मुझे लगता है आप और मेरे लिए तो वही एवरेस्ट है. नहीं, मेरे तो एवरेस्ट से ज़्यादा बड़ा माउंटेन है वो. एंड कई बार मुझसे एक फोटो भेजी थी, अभी आप भी साइट पे गए हो, यूजन की साइट पे, एंड द फोटो वाज सच ब्यूटीफुल फोटो दैट आई हैव सीन इन लॉन्ग टाइम. जस्ट बारिश हुई थी उसके बाद की फोटो है. So coming back to, we have all seen your TEDx talk where you actually in detail shared your story with the audience. So the podcast link of that TEDx talk will be also in this Eugene Radio series.
जहाँ पे आपने बताया है कि यू कम फ्रॉम पूरनपुर, बट आई वुड लाइक अस टू टेक हाउ डिड DMET हैपन फ्रॉम पूरनपुर, how did a small town boy went from Puranpur to DMET? DMET happened not by choice, by chance. And same is for mountaineering as well. So after clearing my 12th, actually I cleared my 12th not from Puranpur but from Nainital. In those days, 12th standard was not available in Puranpur in CBSE medium. So I had to shift to Nainital for 2 years, 11th and 12th, and then I studied in Nainital. After that, I joined college. So after clearing my 12th, I always had the confidence and a sense of adventure in me. So IIT was always there. Ki IIT, everybody is like, clearing IIT, IIT. So I also thought, okay, let's clear IIT. And I was not so fixated on it that I didn't fill any other exam, any other written exam that year, sorry, other than IIT. And luckily, I cleared also IIT, but I was not getting the stream I wanted. And Merchant Navy then looked quite a good option, and I simply joined without knowing anything about it. I had no clue what I was signing up for, but it turned out very, very well. So you sailed for, I guess, more than a decade, Yes, Uh, 15 years. 15 years. How was that career like? And side by side, पहाड़ भी चढ़ते रहे आप. And how did that mountaineering started? Yes, sea life was very good. I truly enjoyed. Like I always, even when I was sailing in those days, also I used to say that I will never say ki I'm bored at sea or I don't want to be here. That will never happen. The day I will think that will happen, I will quit. And regarding mountaineering, yes, we started climbing a few smaller mountains. It started as a hobby. Then every mountain I climbed, the next one I climbed was more challenging than the previous one, and it kept increasing to a point where I actually have now started climbing mountains professionally. I have also started training people to climb mountains, both fitness and technical training. So that is how it is. So climbing mountains, it is a very expensive sport. And how did you manage your funds? अभी भी जहाँ तक मुझे पता है कि it is, I guess, maybe the most expensive sports. ये तो बहुत महंगा शौक है, तो पैसे वालों का शौक है. But a lot of young mountaineers are coming from very very humble beginning. Yes. So how did you manage? क्योंकि आप मर्चेंट नेवी में थे, क्या इसलिए मैनेज हो गया? See, mostly, matlab, one thing is there that I am blessed with very good friends, I will tell you. I have absolutely very, उदाहरण very नहीं good मिला. friends. Correct. I have never, like even this Everest Lhotse twice, this idea was my friend's idea. And when I told him that we are going to shortfall of funds, 101%, like, because this is like not going to happen. And he said that whatever you have, you fund, and rest is all taken care of. So that's how it is. And I started with my own funds, of course, yes, because at that time I didn't know many people in mountaineering, and all the friends were from shipping background or school or college. But slowly, I made friends. People started trusting me, climbing with me, and people started enjoying watching me climb. And that is how they invested money in my expeditions. That is how I climbed. In general, मुझे लगता है कि UGN is also playing crucial role in identifying athletes and supporting them in their journey. क्योंकि you as an entrepreneur has always been supporting in building motivating people in building their own dreams. And I guess अभी 1-2 घंटा पहले ही आपने हमारे पॉडकास्ट शूट हो रहा है उनको भी मोटिवेट कर दिया कि अपना ही रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करें. प्रोडक्शन टीम को ही आपने इतना मोटिवेट कर दिया. So my question to you is on this कि what makes you excited about sports? क्या वो कभी खुद नहीं कर पाए इसलिए रहता है कि सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर तो कहीं ना कहीं बचपन में सबके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन होता ही है. इंडिया में क्रिकेटर ज़्यादा होते हैं हम लोग सब. So and what makes you so supportive of sports person, athletes? मैं देखता हूँ काफ़ी एथलीट आते रहते हैं मिलने ऑफिस में भी आपसे.
what keeps you interacting with them, because you spend a lot of time with them, asking how you can help. कई बार पैसे से नहीं, काफ़ी चीज़ों से हेल्प हो जाती है, and you offer them help. And generally क्या रहता है कि it takes a lot of time, your time as well. Yes. So what keeps you? देखिए बचपन में डेफिनेटली आपका एज यू सेड कि हर किसी का एक ड्रीम होता है, तो बीइंग ए मैं भी आई वाज वेरी कीन एंड वेरी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट वाज द गेम, बट बीइंग ए लाइक ड्यू टू द प्रायोरिटीज और ड्यू टू द सम सर्कमस्टेंसेस हमने थोड़ा सा मतलब कैरियर एज ए कैरियर स्पोर्ट्स को ना लेकर के ना वी हैव प्रिफर आवर एजुकेशन, बट फॉर एनी गुड कोज और फॉर लाइक एनी लाइक सोशल कोज कोई बनता है तो वी आर ऑलवेज ओपन, और स्पोर्ट्स के साथ थोड़ा पर्सनल टच भी है, पर्सनल अटैचमेंट भी है, सो डेफिनेटली जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइदर कुछ भी रीजन होता कोज होता तो वी आर ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट कि हम ठीक है इसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर पाए जो भी हम कर पाए, सो लेट्स सी एज यू सेड कि चलो मेरा ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ बट अगर मेरी कुछ छोटी मोटी सपोर्ट से या हमारे एफर्ट से इफ समवन इज लाइक अचीविंग हिज ड्रीम, सो वी आर मोर देन हैप्पी ना, वी आर ऑलवेज लाइक ओपन टू हेल्प. And we are very thankful for Eugene leadership team for supporting these kind of causes as well. क्योंकि माउंटेनियरिंग में तो आई गेस कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप to male mountaineers is almost negligible. See, it's India में scenario is different than European or Americans. Like those countries, the sponsorship, I will not say it's easy. It's never easy. It's nowhere easy. It's always difficult. But somehow it's the path is not that complicated as in India. Yes, in our country the path is a bit more complicated, although people are getting sponsorships. So now my question is, you have also been teaching mountaineers right now through your platform, and फिटनेस पे अभी मुझे लगता है मैं तो सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल हूँ उसका कि हमारा खुद का ध्यान नहीं रहता अपनी लाइफ पे. सो आई शीश माइट बी फ्यू इयर्स ओल्डर देन मी बट ही इज़ वेरी वेरी फिट. क्या पता यूजेन की पहाड़ी चढ़ के ही इतने फिट हो गए हैं. But in general, fitness is very, very physical fitness, mental fitness is very, very neglected in Correct. India. So, what advice you can give us, Eugene team members, कि हम लोग अपने लाइफ से कितना समय निकाल के we can हम लोग को एवरेस्ट तो नहीं चढ़ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बनाना, but we all want to live a healthier and happier life. See, mostly people fixate on living a lengthy life. मतलब क्या है ना, जैसे if I tell them to यार we should all stay fit, तो people tell me, some of the people who argue with me, they say कि यार we will जिसको बीमार पड़ना होगा वो बीमार पड़ जाएगा. Even fit people fall sick. I said yes, accept it. Even if tomorrow if I catch a virus I will also fall sick. Nothing great in it. But जो ये रोज की quality of life है, the daily morning when I wake up without any pain. I wake up with all the energy in my body. जो डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी हम जी रहे हैं, दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड मैसिवली बाय बीइंग फिट, एंड इट डजंट टेक मच टाइम. 30 to 40 minutes of consistent, the word here is consistent, that is more important. 30 to 40 minutes अगर आप दिन के डेली दे सकते हैं अपनी शरीर के लिए, so that will improve your quality of life. अगला क्वेश्चन है, मैं नहीं देता हूँ आंसर, मेरा शीशराम जी के लिए है कि सर डू यू टेक आउट 30-40 मिनट्स ऑफ योर लाइफ. फॉर मी इट्स लाइक मुझे लगता है कि बच्चे से के साथ खेल के ना मेरी एनर्जी लो हो जाती है. तो मेरा तो 30 मिनट वो हो जाता है जब उसके साथ मैं खेल रहा होता हूँ, तो वो एक्सरसाइज नहीं होती है. बट दे हैव, बिकॉज माई डॉटर हैज लॉट ऑफ रॉ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं मैं थक जाता हूँ, और वो 30 मिनट मेरी लाइफ के वो है. बट आई वुड लाइक टू, क्योंकि आप ही शायद किसी कॉल में बता रहे थे कि एवरी ईयर व्हेन वी ग्रो ओल्डर अगर हम लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं तो हम लोग का मसल लॉस सिग्निफिकेंटली होता रहता है, Correct. एंड व्हिच हर्ट्स व्हेन यू आर इन मिड 40s. सो क्या आप अपनी लाइफ में यू हैव इनकॉर्पोरेटेड सम फिजिकल रूटीन रेजिम कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप की 14 साल 15 साल की जर्नी में वो पीछे रह गया? वो ये जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी थी इसमें डेफिनेटली चीज़ें मिसिंग हुई है ये वाली, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड इट अगेन, और अब मुझे लगता है ये बिकॉज
वो एज भी ऐसी थी ना, व्हेन यू आर 30, 35 और 25, तो आपको उतना फील नहीं होता। बट वंस यू क्रॉस 40 ईयर्स तो फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड यू हैव टू बी फोकस। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड इट, एंड मुझे लगता है 30-40 मिनट्स निकालना इज़ नॉट ए बिग टास्क। जब तक नहीं स्टार्ट करा था तब तक लगता है। लेट्स से कि वंस सुबह जल्दी उठना, एग्जांपल के लिए 6 बजे उठना, 5 बजे उठना या 4 बजे उठना, सुबह जल्दी उठना, जब तक एक बार आप 1 वीक या 10 डेज़ के लिए नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा वो लगेगा। लेकिन वंस यू लाइक डू इट फॉर 10 डेज़ और 15 डेज़, उसके बाद इट बिकेम्स योर हैबिट, एंड उसके बगैर नहीं रह सकते आप। सो इन्हीं ओनली आपको 15 दिन का एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, Correct. रेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली। सो Absolutely. क्वेश्चन है कि अभी आप क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया आपने? यू गो टू जिम नाउ? तो वो ऐसा नहीं कि मुझे जिम से रिलेटेड आप अभी मैंने क्या है कि सुबह जल्दी उठना है, वॉक करना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जिम इज़ द ओनली लाइक क्राइटेरिया टू फिट। आप कुछ भी नहीं करते तो आप सुबह उठिए, वॉक करिए, आप थोड़ा सा पार्क में घूमिए, दैट इज सफिशिएंट। बट मैंने देखा है कि यूजिन के जो लेआउट में, प्लान में हम्म। वेलनेस को और फिजिकल फिटनेस को, इन सब चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखा है। तो क्या वो अपनी लाइफ की कमी को होते हुए भी ध्यान रखा है कि यार दिस इज गोइंग टू बी माय आइडियल सेकंड होम एज वेल? देखो, सी थिंग इज नॉट लाइक माइन और मेरा पर्सनली टेस्ट क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट डेफिनेटली बीइंग लाइक एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी। मुझे नहीं लगता कि आप भी नहीं चाहते, यू आल्सो वांट। हाँ, बट थिंग इज दैट कि माइट बी कुछ ड्यू टू सम रीजंस आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। बट इफ सी, अगर यू हैव सम ऑप्शंस, यू हैव सम लाइक अवेलेबिलिटी, सो थोड़ा उसको करना और ईजी हो जाता है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव इट ऑल दिस, लाइक आई हैव अ जिम इन माय सोसाइटी, तो डेफिनेटली द पॉसिबिलिटीज आर हायर साइड Yes. एज कम्पेयर टू। तो अगर मुझे इफ आई वांट टू बी, आई हैव टू बी ट्रैवल फॉर 30 मिनट 20 मिनट, तो वो एक ना थोड़ा लेजीनेस क्रिएट करता है, यार अब गाड़ी निकालूंगा, जाऊंगा, आऊंगा, तो लेट्स डू मिस इट ना। सो उससे वंस यू हैव लाइक ऑल द amenities within compound, so the probability or the chances of utilizing is like increases. So that is the idea. At our end, our intention is to provide all the amenities to the residents or to the buyer. It's up to the buyer ki how much he use it or not. so you have been to one of the first few DMVTs to visit the Eugene Gold City site. So, आपको क्या डिफरेंट लगा वहाँ पे? कि फर्स्ट थिंग तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज या पेड़ काट नहीं रहे हैं, वही काट रहे हैं जो अटमोस्ट ज़रूरी है। मतलब इट्स नॉट लाइक दे आर डिफॉरेस्टिंग द एंटायर एरिया। एंड जो इनका मैंने लेआउट देखा था वो भी काफ़ी इंक्लूसिव सा लगा कि मतलब वहाँ पे घर भी हैं, पेड़ भी हैं, बाकी गोल्फ का एक आई थिंक आई रिमेंबर बना रहे हैं। Yes. तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी गुड। जो कि यहाँ पे मतलब आप मेट्रो सिटी में तो खैर उतना सोच ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली नहीं है मतलब। बट यस, गोवा में प्रैक्टिकल भी है और उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को ध्यान भी रखा है। I want to add one point कि जितना भी trees का cutting हुआ है due to the road and other like common services, उससे multiple times we will implant new trees. तो we will replace those trees with multiplication. कहीं मैं आपके शायद किसी डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा था कि फॉर एवरी ट्री यू आर प्लानिंग 2 trees. At least 2 to 3. At At least least 2 2 to to 3. 3 trees. So that is something like So we want to be like develop with the nature. We don't want to be develop, or we don't want to be construct on the cost of nature. Na? So US nature is our USP because we are close to nature. So that is our key USP. So we don't want to be destroy that part. and that is something which I am really worried for our mountaineer friend as well. क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग उतनी ही टफ होती जा रही है. द क्लाइमेट एट एवरेस्ट, धौलागिरी, आई गेस from last 1 or 2 season has been very unpredictable, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। and that is what is something and बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि कई बार we have exploited mother earth so much कि कभी तो मदर अर्थ भी रिवॉल्ट कर दे रही है. यस। सो आपको क्या लगता है कि माउंटेनियरिंग टफ क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ टेरेन और इट्स बिकॉज ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट? एंड व्हाई देयर आर नॉट सो मच माउंटेनियर्स कमिंग आउट फ्रॉम इंडिया? बेसिकली माउंटेनियरिंग स्टार्टेड विद एक्सप्लोरेशन। जो अगर आप पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि माउंटेनियरिंग स्टार्ट कैसे हुआ, तो वो एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ माउंटेन्स हैं और लेट्स एक्सप्लोर, क्यूरियोसिटी बेसिकली। एंड उसके बाद इट बिकेम, अब जो रिकॉर्ड्स एंड द फ्रेंजी अराउंड एवरेस्ट, ऑल दोज थिंग्स, ये तो बहुत बाद में आया। एंड रही बात इंडियंस की, सैडली स्पीकिंग इंडियंस का नाम उतना अच्छा नहीं है। वी आर नॉट वेरी known for being good mountaineers, mainly because a lot of Indian mountaineers I see are very highly underprepared and overconfident,
They don't prepare well for the task they are up to, and they just go into, somehow make reels or get some instant popularity. And at that time, that spoils the Indian name. That has been spoiling. That is why when we go, or my friends who go, we go very, very well prepared. When we climb, we want others to see and, take back a good name of our तो country. फौजियों की तरह क्लाइंब करते हो आप? आपकी तो खुद की फोटो नहीं मिलती माउंटेनियरिंग की, मैं बोलता हूँ भाई कुछ तो फोटो भेज दो, तो वो पूरी Yes. पूरी क्लाइंब हो जाता है फिर I'm तो very, reluctant. Reluctant kya? When I'm climbing, I'm only climbing. Yes, if somebody else takes my photo, that is okay. I don't like, I enjoy the climbing part of it. To take out my camera and take a photo, it's like it's breaking the rhythm. And that is why I have very less photos. how climbing impossible mountains have shaped you as an individual. See, mountains, people think they're just made of rocks and snow, but aisa nahi hai. See, more than the rocks or snow that we climb, it's the self-doubt. Once you climb a mountain, you understand about yourself way more than what you understand about the mountain. It's not the mountain you climb, but yourself. That is the common saying. और दूसरी चीज ये है कि आप जब चाहते हो तो कई बार आपको वापस भी लौटना पड़ता है. I have also come back from few mountains without reaching the top. So that makes you ready to, accept failures, which is very important in life. Well, no matter who you are, one or the other day you will fail. Well, that is like the only people who don't fail are the people who have never done anything. या तो आप कुछ मत करिए तो आप फेल नहीं होंगे, और आप कुछ करेंगे तो फेल जरूर होंगे. सो माउंटेन्स वो हमें अच्छे से सिखाता है कि इट्स ओके टू फेल. आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप भी वही चीज सिखा देती है. और मुझे जहाँ तक लगता है, सीइंग शीशराम जर्नी सो क्लोज, ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था, सेकंड फ्लोर पे शीशराम का ऑफिस था, एंड आई हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ हिज जर्नी एंड व्हाट ही बिल्ट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा ही है. It is like climbing a mountain. Yes. Yes. It is in kind of ठीक है. Physically might You be don't know not if you climbing, but summit or not. हाँ, Success मिलेगी ये पता नहीं होता. you never know. You never know. You never know. So what keeps you going? अच्छा, एक apart from that, सक्सेस मिलेगी, वो सक्सेस रिटेन होगी या नहीं होगी, that is another challenge. Correct. तो the same mountain theory में कि एक बार किसने समिट कर लिया, so उस समिट पे दूसरे भी आएंगे. तो जो सक्सेस आपने पा ली उस सक्सेस पे दूसरे भी आएंगे, वो सक्सेस दूसरों को मिलेगी. सो मेरा क्वेश्चन भी आपसे ये है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग एज एन एंटरप्रेन्योर? अंदर कौन सी आग है ये जो सुबह आपको डेली दौड़ा देती है? 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो आप, सबसे आखिरी तक ऑफिस रहते हो, एंड ये मैं आज से नहीं, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ ये. वो किस चीज की आग है वो? अब यू नेवर नो, मतलब मुझे भी नहीं पता ईमानदारी से कि ये कौन सी झील और कौन सी फायर है जो अंदर से है. बट अभी एक नया फैक्ट आपको और बताता हूँ मैं. अभी 9 बजे नहीं, आजकल मैं 8 बजे ऑफिस आना स्टार्ट हो गया हूँ, क्योंकि सुबह 8 बजे मुझे अपने बेटे को ड्रॉप करना होता है. अब मुझे लगता है जब मैं आ गया हूँ ऑफिस के पास में, तो अब कहाँ घर जाऊँगा, वापस फिर आऊँगा, तो लेट्स डू इट. सो अब तो 2 घंटे पहले मैंने अपना दिन स्टार्ट कर दिया है. That बट is some- बट लिटरली वन थिंग इज लाइक, आई लाइक टू बी अप्रिशिएट वो ऊपर वाले की गॉड की क्या मतलब एनर्जी और क्या लेवल. मतलब आप जब काम करते हो ना, मैंने कहा ना, शिद्दत और फोकस के साथ, वंस यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग, आपको कभी टायर्डनेस नहीं होती. आप 12 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम कर रहे हो, नेवर टायर्ड. मतलब मैं कभी, मतलब मुझे वो नहीं फील हुआ है कि यार बहुत कुछ आज टायर्ड हो गए हैं कुछ. कब मेरा दिन खत्म हो जाता है, इतना इंगेज रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता. अभी 7 बज चुके, आई डोंट नो कि मुझे इतने जल्दी 7 बज गया आज दिन के ना. And सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है आपको इसका एंटरप्रेन्योरशिप में? मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट यू फेस? ये हो कि द थीम इज ग्रेट ग्लोरी एंड द सोल ऑफ समिट. ये माउंटेन्स भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप दोनों चीज. सबसे टफ पार्ट यू ये फाइंड? देखो, एंटरप्रेन्योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट एवर यू वांट टू बी से, आप कुछ भी बोले अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ही इज लाइक एन अ बेबी. आपको उसकी इतनी केयर करनी पड़ती है कि अगर आपने वो केयरिंग ना, अगर आपने केयरिंग को थोड़ा सा भी अगर उसमें इग्नोरेंस किया, या आपने उसको थोड़ा सा मिसिंग किया उस केयरिंग को, सो वो पूरे का पूरा जो आपके एफर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं. एंटरप्रेन्योर में एक और बड़ा चैलेंज है कि आपका एफर्ट्स, इफ़ यू आर पुटिंग 90% एफर्ट्स और 95% एफर्ट्स, सो भी आपको जो है
बिकॉज जहाँ भी इट रिक्वायर्स 100% एफर्ट्स तो आपको 100 ही देना पड़ेगा। अब 99 भी दोगे, 95 दोगे तो भी आपसे सक्सेस कहीं ना कहीं रह जाएगी, मिसिंग हो जाएगी, और वो 90% एफर्ट्स भी आपका वेस्ट हो जाता है। तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यू हैव टू बी 100% फोकस्ड। माउंटेनियरिंग में सत्यदीप सर की सबसे टफ चीज आपको क्या लगती है कि दिस इज द टफेस्ट पार्ट? See- मैं मुझे तो पता है, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मानसिक फायदे See, mountaineering में वही बोलने वाला, there are two parts of mountaineering. One part is actually climbing the mountain, and the second part जो back end में चलता है is able to be raise funds to reach there. तो अगर हम इस पार्ट की बात करें बैक एंड की, तो ऑब्वियसली रेजिंग फंड्स इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर हम हार्डकोर माउंटेनियरिंग की बात करें, द एक्चुअल क्लाइंबिंग पार्ट, सी क्लाइंबिंग सबसे मुश्किल मुझे लगता है कि टू बी इमोशनली डिटैच्ड विद द समिट। बाय इमोशनली डिटैच्ड मीन, मैंने कई बार होता है कि हम जब ऊपर जा रहे होते हैं तो हम इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं समिट को कि कुछ भी हो जाए हम समिट करना है, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। समटाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द वेदर कंडीशंस, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ओन बॉडी एंड यू हैव टू कम बैक। So that point, that coming back, that turning back, that is very difficult. I mean, it is not easy to turn back from a mountain, Yes. because you have spent so many months or sometimes year training for it, and you know that you will get chance after one more year. So, and lot of lives are lost Yes. not turning back. Yeah. So my question to you is कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो गया भैया, एक होता है ना लाइफ का एक गेम होता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगी, अब हमको लगा था उसके बाद आप रुक जाओगे। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सत्यदीप एज अ माउंटेनियर? See, as a mountaineer, अगर हम बात करें तो my dreams are very big, honestly speaking. पहले मैं आपको एक I'll tell you some facts. 8,000 meters के 14 mountains हैं, we all know, and 5 are in POK which are not accessible to Indians. So हम 9 mountains climb करते हैं, और इन 9 माउंटेन्स में बहुत सारे रूट हैं, फ्रेंच कूलर, जेनेवा स्पर, स्पेनिश रूट, बहुत सारे रूट हैं विच आर नेम्ड आफ्टर द कंट्री जिनके सिटीजन्स ने वो रूट खोला है, दे हैव इन्वेंटेड दैट रूट, है ना, नया रूट निकाला है। अ वेरी सैड स्टोरी इज कि नन ऑफ द 9 माउंटेन्स हैव एनी इंडियन रूट, ओके, किसी के पास भी नहीं है। सो if at all I achieve or I reach that standard, I would love to have a route by Indian route, क्योंकि वो है नहीं, एंड उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इफ वी गो, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स व्हाई इट इज नॉट देयर। So yeah, if I could ever achieve something in mountaineering, that will be। कोई इमीडिएट एक्सपेक्टेशन? Yes, immediate expeditions हैं। मैं अभी देनाली जा रहा हूँ। देनाली इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अलास्का में है वो, यूएस। I'll be going, and after that my plan is to climb Manaslu. Manaslu is a 8,000 meter mountain, 8163 meters, and I'm planning to climb it without artificial oxygen. Even climbing without artificial oxygen is something very new to our country. ज़्यादा लोग ने किया नहीं है, hardly 3-4 people have previously done it. So that is the plan. आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की समिट में 500 एकड़ की टाउनशिप तो हो ही रही है। व्हाट्स नेक्स्ट इन यूजन स्टोरी? सी अगला माउंटेन कौन सा है इनका? 2-3 रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ, आई वांट टू बी लाइक एक्सपैंड आवर प्रेजेंस अक्रॉस द इंडिया, और एक रियल एस्टेट की हिस्ट्री में, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक थोड़ा डिफरेंट और एक यूनिक लैंडमार्क्स डेवलप करना का नेक्स्ट टारगेट हमारा। वी वांट टू बी डेवलप दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी। जो अभी तक आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट में उतना स्ट्रांगली टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो उसी सिनेरियो को वी वांट टू बी लाइक ब्रिंग इनटू द इंडियन रियल एस्टेट सिनेरियो एंड ग्रो विद दैट। कंप्लीटली मेक इन इंडिया फिलॉसफी की बाहर से भी ला रहे हो? अभी तो इट्स कम्प्लीटली मेक इन इंडिया, बट टेक्नोलॉजी अगर आप, इफ यू आर ब्रिंगिंग सम गुड टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड एंड उससे एडवांटेज होता है, तो वी मस्ट बी वेलकम दैट। Yes. So my next question is, as we come to conclude this podcast, so most of our viewers watching are young viewers who aspire to become like Shishram, who aspire to become like Satyadeep. So what is your advice for young generation who aim to get into mountaineering or achieve the extraordinary world record that you have achieved? What is the advice you want to give to the young generation? Not only mountaineering, I think the Life only में। advice, yes, for life in particular, I always give is be ready to fail. आपको कुछ करना है,
never be afraid of failures. कॉम्प्लिसेंसी नहीं आ जाएगी उससे? नहीं नहीं, क्या रे यार, पर सत्या तुमने कहा था फेलियर पे वादी पड़ेगी नहीं अब। no, it's not like that. See, whenever we are about to start a new thing or new project या कुछ भी नया करने की हम सोचते हैं, the first thing that comes in our mind is what if we fail, and then we never take the first step. So that is what I am saying, कि be ready. Okay, few times we will fail, not a big deal. And what is your advice for young people who aspire to become entrepreneurs like you, and it's just like climbing mountains? तो कोई young advice for young entrepreneurs who would like to build companies like Eugene Infra someday? सी माय सिंपल एडवाइस कि आप अपना एक जस्ट सेलेक्ट एन आइडिया और एन एम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फोकस, योर एंटायर फोकस मस्ट बी अराउंड दैट. कुछ क्वालिटीज जो आप चाहते हो कि यंग जनरेशन इनकलकेट कर, 2-3 क्वालिटी जो कि आपको लग रहा है कि मिसिंग है, एंड इस माध्यम से आप उन तक वो क्वालिटीज पहुंचाना चाहते हो. The biggest quality मैं बोलूँगा has to be discipline. See, discipline beats everything. अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जाके डिसिप्लिन लैक कर दोगे, एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेम क्वेश्चन फॉर यू सर. कुछ क्वालिटीज आप चाहते हो, फोकस तो हो गया कि इनकलकेट करे यंग जनरेशन, जो कभी कभी हम लोग को लगता है मिसिंग है. डिसिप्लिन में तो मैं सेम आंसर क्वेश्चन आप रिपीट नहीं कर सकते हो, कि मैं जानता हूँ कि हाउ डिसिप्लिन यू आर एज एन इंडिविजुअल, वी ऑल लुक अप टू यू, बट Yes, कोई sir. दूसरी एडवाइस? Apart from discipline, you have to be dedicated, you have to be focused, you have to be integrated. So these 3-4 qualities are that. Integrity is one of them, or hardworking is, transparency is, discipline is, the all these are the like things that gives you a result. ये सुनने में these are the small things, हर कोई जानता, but जो major impact create करती है, these are the little things which create a major impact. I guess thank you guys for answer, but we will have a fun round फिर both with शीशराम and ये segment अभी यूजन रेडियो में इंट्रोड्यूस हुआ है कि वो लास्ट में हम लोग थोड़ा फन कर सकें. So शीशराम जी, if you have to pick one, beach sunrise or mountain sunset? Mountain sunset. Mountain sunset. Same. Mountain sunset. Mountain sunset. Your go-to place in Goa, just to unwind, no phones, no meetings. वो कहाँ होगा गोवा में? सम सेक्लूडेड बीच जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो. आपके आंसर पता है मुझे. It's again Golf Golf City. Yeah. If Eugene गोल्ड सिटी गोवा के अलावा कहीं और होता तो वो कहाँ होता? टफ क्वेश्चन Little bit. है. Yes. That can be in Shimla, I think. शिमला. Yes. फेवरेट फूड आपके लिए, इनका पता है हमको. मेरा फेवरेट फूड चिकन बिरयानी. चिकन बिरयानी. शीशराम जी का पनीर है क्योंकि वेजिटेरियन है, और वेज बिरयानी जैसी कोई चीज होती नहीं है. नहीं होती है वेज बिरयानी भी होती है. वो बिरयानी नहीं होती है. वेज बिरयानी नहीं, पुलाव. हाँ, you can say that. What is your dream for Goa See, as a state? as a like developer, our responsibility कि आप जिस माइक्रो मार्केट में, जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो, तो यू एज ए लीडर यू हैव टू बी लाइक ब्रिंग some new innovation, some new technology, some new practices. So go in sense of Goa कि we want to be do some quality development जो might be अभी तक गोवा में नहीं आया है, मिसिंग है वहाँ पे. So we want to implement, or we want to be develop that kind of infrastructure over there. 3 words for Eugene जिससे आप जाना लगता है कि it will be remembered for this. 3 वर्ड क्या है जो आपकी ब्रांड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है? 4-5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता Can है. be, I Few think words. it's like live, work, enjoy, party hard, Okay. peace of mind. 3 words to define Satyadeep as a person. Discipline, adventure, confidence, sometimes overconfidence. Sometimes overcome. हिमालय से कुछ अगर गोवा लाओगे तो वो क्या चीज होगी? ठंडी हवा. ठंडी हवा. इंडिया और बर्फ. ठंडी और हवा. अगर आप गोवा से कुछ हिमालय लेके जाना चाहेंगे शीशराम जी, तो क्या होगा? वो फेनी तो नहीं हो सकती. वो पानी होगा पानी होगा. या फिर यू कैन से वो पेनी भी हो सकते हैं. So on that fun note,
we would end this podcast. And I would like to thank both Thank you. Satyadeep and Shishram Thank you, for being Pratik. so Thank you. awesome.